Hello guys, today we are going to discuss the second chapter of NCRT Maths class 10 that is related to polynomials, equations, and it is basically an upgrade from the previous chapter that we have already discussed, that was real numbers. Okay, so all the theoretical part has been covered as well as all the numericals and each numericals of the chapter from the NCRT and beyond NCRT has been covered within 30 minutes. So please pay attention to this video and hope you stay with us, and we are all open for any queries, and we work hard for the resolution of those queries. If you have any query, you can contact us or you can tell us through comments or DM or through official mail that has been given in the description of this YouTube channel. Thank you. So hello guys, welcome back to my YouTube channel. So today we are going to discuss about basically about the polynomials, the chapter 2 of class 10th maths properly from NCRT, as well as I will be covering all the important topics from outside the syllabus that might be asked in your exams, right? It is one of the most, there are certain chapters who are a stepping stone if you want to go with maths in your class 11th and 12th. So this is going to be the stepping ladder for it, right? And this is very interesting chapter and it is a very easy chapter. बहुत ही आसान सा चैप्टर है, बहुत ही इजी चैप्टर है और चुटकी में खत्म हो जाएगा क्योंकि इसका बेस आपका क्लास 9 से ऑलरेडी बना हुआ है. So without wasting any time, let's start the chapter. See, polynomials. So polynomials, you are aware of polynomials. Polynomials are mathematical equations that are somehow written like this, like 2x plus 1 is equal to 0. It is also a polynomial. 2x square plus 5x plus 7 is equal to 0. It is also a polynomial. 3x cubed plus 2x square plus 10x so is equal to 0. और ये पावर बढ़ते जाता है. These all are polynomials, right? ये सारी चीजें आप पहले भी पढ़ चुके हो क्लास 9 में. So now, the first thing that we have to study here is a polynomial of degree 1 is called a linear polynomial. ये सारा पढ़ा हुआ है. It is a like it is a very basic thing कि first of all, तो degree of polynomial. What is degree? Degree कुछ नहीं है. जो पावर है, वेरिएबल में जो पावर है उसी को डिग्री कहते हैं. जैसे 2x minus 1. लीनियर मतलब क्या होता है? लीनियर मतलब 1 होता है. क्वाड्रेटिक मतलब 2 होता है. राइट? क्यूबिक मतलब 3 होता है. तो जिस भी पॉलिनोमियल के वेरिएबल में का मैक्सिमम पावर 1 है तो वो है लीनियर पॉलिनोमियल. 2x⁻1. वैसे ही आता है पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ये कुछ इस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है. जैसे ax square plus bx plus c is equal to 0. This is the structure of a quadratic polynomial. Got it? फिर फर्दर हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल पढ़ना है एंड सो ऑन. एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल भी मोस्टली एनसीईआरटी और एग्जाम्स में इससे क्वेश्चंस नहीं आते हैं. डिस्कस्ड है और बहुत ही कम डिस्कस्ड है. ये समझ लो कि एक तरह से एक स्टेपिंग स्टोन है. आप लोग को अवेयर करा दिया जा रहा है कि आने वाले क्लासेस में यानी 11th 12th में आप क्यूबिक पॉलिनोमियल को भी डील करोगे, राइट? सो ये इतना इम्पोर्टेंट क्लास 10th के लिए स्ट्रिक्टली नहीं. ठीक है.
हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, सॉरी, लीनियर पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब आते हैं, देखो, दिस वीडियो इज लाइक दिस वीडियो इज गोइंग टू बी प्योरली अ नो नॉनसेंस वीडियो। हम लोग स्ट्रिक्टली सिलेबस को कवर करेंगे, 2D पॉइंट पढ़ेंगे, 2D पॉइंट सारे क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे इस वीडियो में। इसमें देखो, द जीरो ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल। अब हम देखेंगे कि व्हाट आर द जीरोस। जीरोस ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल होते क्या? जीरोस कुछ नहीं होते हैं। जीरोस आर बेसिकली सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस मतलब कोई इक्वेशन है, सपोज देयर इज अ इक्वेशन 2x minus 3 is equal to 0। तो लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोस कितने होंगे, या इसके कौन से जीरोस होंगे? तो इसके जीरो होगा 2x is equal to 3, x is equal to 3 by 2। तो x को जीरो बोलो, या हायर क्लासेस में सॉल्यूशन बोलो, या और हायर क्लासेस में जाओगे तो इसको रूट्स बोलो। ये तीनों चीजें सेम होती हैं, ठीक है। अब हम आते हैं फॉर्मूलाज पे। तो द जीरो ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल इज माइनस बी बाई ए। ओके, माइनस बी बाई ए। इसका जीरो क्या है? 3/2। ये तो मैंने बिना फॉर्मूला के निकाला। फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला कहता है, फॉर्मूला कहता है जीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल क्या है? इसको हम, ये है माइनस बी बाई ए। माइनस बी ए बाई ए क्या है? माइनस बी बाई ए कुछ नहीं है, मैंने पहले जो स्ट्रक्चर बताया है किसी भी पॉलिनोमियल का, इसको ऐसे देख सकते हो। ए एक्स, देखो यहाँ पे दिया हुआ है, बहुत ही क्लियरली रिटन। ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, यानी हमें एक्स का वैल्यू निकालना है। अगर ध्यान से देखो तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बस एक्स का ये जो वेरिएबल है इसका वैल्यू निकाल रहे हैं, जो कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, जीरो कहलाएगा, या रूट्स बोल लो, ठीक है। देखो, एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। एक्स क्या हो जाएगा? माइनस बी बाई ए, राइट। बहुत इजी चीज है। अगर इस फॉर्मूला को समझोगे कि ये फॉर्मूला कहना क्या चाहता है, तो बस फॉर्मूला यही कहना चाहता है तुमसे कि वेरिएबल का आंसर दे दो मेरे को, वेरिएबल का सॉल्यूशन क्या है, वेरिएबल का वैल्यू क्या है। उसी को हम लोग माइनस बी बाई ए लिखते हैं, राइट। अब आते हैं जीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। इंटरेस्टिंग। देखो, यहाँ पे बहुत सारे ग्राफ के थ्रू एक्सप्लेन किए गए हैं क्वेश्चंस, ठीक है। ग्राफ के थ्रू नाइन्थ में, एट्थ में, सेवेंथ में पढ़े होंगे। ग्राफ बनाना, कोई भी एक इक्वेशन है, सपोज एक इक्वेशन है 2x + 3, तो इसका ग्राफ बन जाएगा। इसको इक्वल टू y मान लो, x का वैल्यू करो, फिर y से रिलेट करो जो वैल्यू आ रहा है। मिनिमम दो दो यूनिट तुम्हें जरूरी होते हैं एक ग्राफ बनाने के लिए, राइट। एंड द सेम थिंग हैपेंस विथ this, but here there is a very interesting thing, especially for this type of equation। Questions पूछे जाते हैं, how many zeros, number of zeros, there can be several zeros, right। तो क्योंकि you are calculating it, you are calculating the result as zero ना, but if you will uh, put the final answer or the final solutions in another variable, तो इसका वैल्यू चेंज करोगे तो फिर ये चेंज होगा, तो डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशंस आ सकते हैं। इसका सबसे बेसिक, सबसे क्लीन तरीका है ग्राफ में
कि तुम एक ग्राफ ड्रॉ करो, सॉल्यूशंस निकालो, ग्राफ बनाओ। जीरोस याद रखना, जीरोस हमेशा एक्स एक्सिस पे निकलते हैं। ये जो एक्स एक्सिस है तुम्हारा और ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस पे जितने बार भी ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा है उतने जीरोस होंगे। यहाँ पे एक बार में एक्स एक्सिस को ग्राफ ने इंटरसेक्ट किया है तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? वन। यानी नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हैं, या जीरोस बोल लो, वन। हाँ, ये और क्लियर होगा आगे के बाद पढ़ोगे तो। देखो, सपोज कि ये एक इक्वेशन, ये कौन सा इक्वेशन है? अब हम आ गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ग्राफ कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा, पाराबोलास। ये जो शेप बन रहा है कर्व, इसको पाराबोलास बोलते हैं, राइट? पाराबोलास आर समथिंग लाइक दिस। ये ग्राफ में ऐसे बन गया तो दिस दिस इज कॉल्ड पाराबोला, राइट? अब इसमें देखो, ये एक जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, ये दो जगह इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को, राइट? दो जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब कि नंबर ऑफ जीरोस दो है इस इक्वेशन के। ठीक है, बहुत बेसिक सा फंडा है। फंडा यही है कि तुमको अगर तुम्हारे पास ग्राफ है और क्वेश्चन में नंबर ऑफ जीरोस पूछा है तो कुछ नहीं करना है, एक्स एक्सिस को जितने बार भी इंटरसेक्ट कर रहा है उतने टाइम जीरोस होंगे। एक बार, दो बार, अगर तीन बार, चार बार, पांच बार इंटरसेक्ट करेगा तो पांच जीरोस, छह जीरोस इसमें आओ। देखो, नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस, यहाँ नंबर ऑफ जीरोस टू हो गए, यहाँ नंबर ऑफ जीरो वन हो गए। अब इसमें देखो, यहाँ नंबर ऑफ जीरोस कुछ नहीं, क्योंकि एक्स एक्सिस पे कहीं इंटरसेक्शन नहीं है दोनों ग्राफ में, so there are no zeros in this case, right? How many zeros इसमें आएंगे? एक, दो, तीन। इसमें नंबर ऑफ जीरोस, there will be total three zeros, right? बहुत बेसिक सा, बहुत सिंपल सा फंडा। अब देखो, सीधे क्वेश्चंस बनाओ। मैटर, मैथ्स में मैटर ये करता है क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट, और क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं विद दैट कॉन्सेप्ट। इसे सॉल्व करो जो हमने पढ़ा है। इस वाले ग्राफ में नंबर ऑफ जीरोस कितने? एक्स एक्सिस पे कोई इंटरसेक्ट नहीं है तो नंबर ऑफ जीरोस जीरो। एक्स एक्सिस पे एक इंटरसेक्शन, नंबर ऑफ जीरोस वन। नंबर ऑफ एक्स 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 एक्सिस पे कितने इंटरसेक्शन है? तीन इंटरसेक्शन, नंबर ऑफ जीरोस थ्री। सिमिलरली इसमें दो जगह इंटरसेक्शन है, नंबर ऑफ जीरोस टू। इसमें वन टू थ्री फोर, चार जगह इंटरसेक्शन है, नंबर ऑफ जीरोस फोर। एक, दो, तीन, तीन जगह इंटरसेक्शन है, नंबर ऑफ जीरोस थ्री। तो यहाँ लिख दो जीरो, वन, थ्री, टू, फोर, थ्री, राइट? बहुत बेसिक सा thing है। अब आते हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोम। पहले जानेंगे कि व्हाट आर द कोएफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोम। कोएफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल जनरली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखते हैं, और जिसमें हमें फर्दर डील करना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखने का एक तरीका होता है, एक सर्टेन स्ट्रक्चर में उसे लिखा जाता है। वो स्ट्रक्चर होता है एक्स एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। व्हाट आर द कोएफिशिएंट? कोएफिशिएंट ये है, कोएफिशिएंट ये है, कोएफिशिएंट ये है। ए, बी एंड सी आर कोएफिशिएंट। ये किसका कोएफिशिएंट है? ए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, बी एक्स का कोएफिशिएंट है, राइट? And C itself is a constant term where there are no variables.
इस सर्टेन स्ट्रक्चर में जब लिखा हुआ रहेगा कोई भी इक्वेशन, तो ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। राइट। अब आते हैं, देखो, सिंपल सा फंडा, अल्फा एंड बीटा, these are zeros or solutions or you can say roots of the equations। ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में देयर विल बी टू जीरोस, दो सॉल्यूशंस बनेंगे। राइट। क्योंकि x का पावर टू। अब वो सॉल्यूशंस क्या क्या हैं? इसके सॉल्यूशंस हैं दो, एक है अल्फा, एक है बीटा। ये सॉल्यूशन नंबर वन, ये सॉल्यूशन नंबर टू। ठीक है। तो एक इक्वेशन है, लेट एन इक्वेशन बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू, ये एक कोई पॉलिनोमियल है। ठीक है। इक्वेशन, तो इसके जीरोस का वैल्यू क्या है? जीरोस का वैल्यू क्या है? रूट्स का वैल्यू क्या है, या सॉल्यूशंस का वैल्यू क्या है? सॉल्यूशंस इसके हैं दो, एक है अल्फा, एक है बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। ये होता है फॉर्मूला। दिस फॉर्मूला यू हैव टू ऑलवेज कीप इन योर माइंड, क्योंकि इसका बहुत यूज होने वाला है। जो दो जीरोस हैं या दो रूट्स हैं, उनका एडिशन माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई ए क्या है? कोएफिशिएंट्स अल्फा इंटू बीटा। इसको बोलते हैं एडिशन ऑफ ए स्क्वायर और प्रोडक्ट ऑफ ए स्क्वायर और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सी, और सी बाई ए है कोएफिशिएंट। राइट। अब आओ, ठीक है। देखो, सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लिखा हुआ है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा, these all are what? These all are zeros, these all are zeros। zeros बोलो या solutions बोलो, whatever it is, हाँ? these all are same thing, sum of zeros product of zeros। ये फॉर्मूला कैसे बना ये भी देख लीजिए, आगे चल के मैं बताऊंगा। बहुत ही दोनों इंटर रिलेटेड है। अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू स्टडी। अब आ गए हम लोग क्यूबिक इक्वेशंस, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। क्यूबिक पॉलिनोमियल भी सेम चीज, जस्ट अ डिफरेंट स्ट्रक्चर। क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्ट्रक्चर ये है। एग्जाम्पल, टू एक्स क्यूब। क्यूबिक क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पावर का वैल्यू थ्री है वेरिएबल में। माइनस फाइव एक्स स्क्वायर माइनस फोर्टीन एक्स प्लस एट। ठीक है। अब इसके कितने जीरोस होंगे? इसके तीन जीरोस होंगे। क्यों? क्योंकि इसका पावर थ्री है। इसका तीन तरह से सॉल्यूशंस बनेगा। लीनियर इक्वेशन का एक जीरो होगा, इसका एक तरह से सॉल्यूशन आएगा। एक वैल्यू पुट करने पे उस वेरिएबल का कोई एक वैल्यू रहेगा जिससे हमारा आंसर आ जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो वैल्यू रख सकते हैं वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए, एंड सिमिलरली क्यूबिक इक्वेशन में तीन वैल्यू हो सकते हैं जिससे वो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। तो इसके जीरोस होते हैं अल्फा, बीटा एंड गामा। इसके फॉर्मूलाज ये हैं। इसके फॉर्मूला और पॉलिनोमियल्स के फॉर्मूलाज, स्पेशली बाइनोमियल्स, ये दो फॉर्मूला यू शुड रिमेम्बर। ठीक है। अगर ये रिमेम्बर रहेंगे, ये याद रहेंगे, तो एग्जाम्स में सॉल्यूशन बनाने में बहुत आसानी होगी। नाउ
फाइनल एक्सरसाइज, ठीक है, एक्सरसाइज 2.2। 2.2 है। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द zeros of the following quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and the coefficient। ओके, इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन ले लो। सपोज सपोज दो क्वेश्चन लेंगे, एक क्वेश्चन 2 और एक क्वेश्चन 5। जैसे दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है 4s² माइनस 4s+1। फर्स्ट क्वेश्चन है 4s² माइनस 4s+1। अब इसका हमें जीरोस, दोनों जीरोस फाइंड करना है। जीरोस बोलो, सॉल्यूशन बोलो, या रूट्स बोलो, जीरो एक ही चीज, ठीक है। इसको फाइंड करने का सिंपल सॉल्यूशन होता है फैक्टराइजेशन मेथड। और ये फैक्टराइजेशन मेथड क्यों होता है, मैं बता रहा हूँ किस लिए होता है। क्योंकि आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा के फॉर्मेट में लिखते हो। यहाँ अल्फा बीटा क्या है? अल्फा बीटा है जीरोस, जीरोस, राइट। तो इसको फैक्टराइज करते हैं, 4s² माइनस 4s+1 को हम इस फॉर्मेट में लाते हैं, ठीक है। इस फॉर्मेट में कैसे आएगा? बहुत सिंपल सा, ठीक है। आप इसको ऐसे लिखो, 4s² माइनस 2s माइनस 2s+1, राइट। गॉट इट। 4s कॉमन लो, क्या बचा? सॉरी, आप 2s कॉमन ले लो। 2s कॉमन ले लिया, क्या बचा? 2s-1, 2s-1, यहाँ पे हुआ -1। 2s-1 इंटू 2s-1, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा 2s-1 इज इक्वल टू 0, तो s इज इक्वल टू 1/2। और जो दूसरा जीरो भी आएगा वो भी सेम आएगा, यानी यानी जो दो जीरोस हैं वो है -1/2 एंड -1/2। और आप ये देखोगे कि ये जो इक्वेशन है, स्ट्रक्चर है, उसमें ये स्ट्रक्चर फिट नहीं हो रहा है। फिट क्यों नहीं हो रहा है? इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे x का कोएफिशिएंट है। x का कोएफिशिएंट हटाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं बाई 4 बाई 4 बाई 4 कर देते हैं, ठीक है। रिजल्ट सेम आता है, बट फर्दर कॉम्प्लिकेशन नहीं करते हैं मैथ्स को, जितना इजी सिंप्लीफाइड रखो उतना आसान, ठीक है। और क्वेश्चन में हमें क्या क्या था कि वेरीफाई द रिलेशनशिप, रिलेशनशिप वेरीफाई करना है, यानी कि क्या ये x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा के फॉर्मेट में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अल्फा बीटा पता है, आप x² लिखो माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी -½ प्लस -½ कितना होता है? -½ प्लस ½ कितना होता है? देखो कितना होता है, 2 लो, -1 -1 -2 -1 +1, तो ये हो जाएगा x² माइनस एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा माइनस इस, ये हो जाएगा 1/4, राइट। एनी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम, कोई इशू? नहीं। मैंने x यहाँ पे इसलिए लिया क्योंकि ये x के
इस स्ट्रक्चर पे हमने कैलकुलेट किया। ठीक, लेना हमें चाहिए था एस, क्योंकि यहाँ वेरिएबल एस था, तो इसका स्ट्रक्चर होना चाहिए था एस स्क्वायर माइनस एस प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0। लेकिन अब एक क्वेश्चन तुम लोग के दिमाग में आएगा कि ये तो इस इक्वेशन है नहीं, सेम इक्वेशन है नहीं। ये दोनों इक्वेशन तो सेम है नहीं, तो ये सेटिस्फाई कैसे हो रहा है? एक्चुअली में ये दोनों इक्वेशन सेम ही है। आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि हमेशा जब भी एक प्रॉपर ढंग से वेरीफाइड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखोगे, तो जो स्क्वायर वाला वेरिएबल है, कोशिश करो कि उसके आगे पावर नहीं रहे, उसके आगे कोई भी कोएफिशिएंट नहीं रहेगा। तो इसका कोएफिशिएंट कैसे जाएगा? डिवाइडेड बाई 4, 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0/4। ये आ जाएगा एस स्क्वायर माइनस एस प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0। क्या ये इक्वेशन 2 और क्या ये इक्वेशन 1 सेम है? बिल्कुल सेम। ठीक है, अब आप देखो, ये टी स्क्वायर माइनस 15 कंसीडर करते हैं। ठीक है, टी स्क्वायर माइनस 15। अब टी स्क्वायर माइनस 15 को कैसे फैक्टराइज करो? टी स्क्वायर माइनस 15 फैक्टराइज होगा टी का होल स्क्वायर माइनस 15 को रूट 15 का होल स्क्वायर लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, राइट? तो आप इसे टी प्लस रूट 15 टू टी माइनस रूट 15 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं। इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। तो टी का वैल्यू आ जाएगा माइनस रूट 15 एंड प्लस रूट 15, राइट? कोई दिक्कत? दोनों सॉल्व, ये अल्फा और ये बीटा है। अल्फा का वैल्यू माइनस रूट 15, बीटा का वैल्यू प्लस रूट 15। ठीक है, कोई इशू नहीं। अब हमारा एनसीईआरटी क्या कहता है वेरीफाई करने के लिए? वेरीफाई कैसे होगा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। और इस इक्वेशन में हम अल्फा बीटा पुट करेंगे, तो हमें कौन सा इक्वेशन मिलना चाहिए? हमें इक्वेशन मिलना चाहिए टी स्क्वायर माइनस 15 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में अल्फा बीटा पुट करो, टी स्क्वायर माइनस अल्फा क्या है? माइनस रूट 15 एंड प्लस रूट 15, ऐसे लिखो टी, राइट? प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा होगा रूट 15 इंटू माइनस रूट 15, 0। टी स्क्वायर प्लस रूट 15 माइनस रूट 15 क्या होगा? कट जाएगा, ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 0 इंटू टी भी 0 हो जाएगा। तो ये टी स्क्वायर। अब आओ, प्लस रूट 15 इंटू रूट 15, रूट 15 इंटू रूट 15 15 होगा, राइट? और यहाँ पे माइनस है, माइनस आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया टी स्क्वायर माइनस 15 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 2 मानो, क्वेश्चन में ये इक्वेशन 1 मानो। क्या हमारा इक्वेशन 1 और क्या हमारा इक्वेशन 2 सेम आ रहा है? हाँ जी, बिल्कुल सेम आ रहा है। तो एज इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2, hence the formula is verified, right? अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद अ गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। बहुत सिंपल है, एक इक्वेशन ले लो, ये रूट 2 एंड
रूट 2 and 1/3 रूट 2 and 1/3 क्वेश्चन है रूट 2 and 1/3 रूट 2 and 1/3 से क्या करना है क्वेश्चन में क्या पूछा क्वेश्चन में पूछा रूट 2 and 1/3 से हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्ट्रक्चर मैंने क्या बताया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्ट्रक्चर होता है with the help of roots x square minus alpha plus beta x plus alpha beta, right? Sum of roots, product of roots, x square minus alpha plus beta में पुट करो रूट्स को रूट 2 प्लस 1/3 x प्लस रूट 2 इंटू 1/3 ये इक्वेशन बनेगा इधर प्लस कर दो माइनस उधर कर दो 1/3 माइनस रूट 2 x प्लस रूट 2/3 x स्क्वायर प्लस क्या इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं इट शुड इक्वल टू 0 इस तरह से इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में हम लिखेंगे ठीक है और सिंप्लीफाई कर सकते हैं बिल्कुल सिंप्लीफाई कर सकते हैं लेट अस डू वन थिंग हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इधर भी तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 रूट 2x प्लस रूट 2/3 आंसर और अगर सिंप्लीफाइड आंसर लिखना है तो x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 रूट 2/3x प्लस रूट 2/3 इज इक्वल टू 0 और गॉट इट हेंस यही है कुल मिला के पॉलिनोमियल्स चैप्टर होता है खत्म होप टू सी यू गाइस इन द नेक्स्ट चैप्टर और कमेंट्स करके जाना और किसी भी तरह का दिक्कत हो परेशानी हो you can contact me on my email you can contact me through comments and DM your queries will be resolved within 24 hours thank you